The concept of work is defined for two types of forces, for constant force and for variable force. अंडरस्टैंड? जो वर्क की डेफिनेशन है वो इस बात पे डिपेंडेंट होगी कि गिवन फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल. इन केस यू हैव कांस्टेंट फोर्स, देन वर्क इज डिफाइंड एज the dot product of force vector and displacement vector. F dot S is the standard definition for work due to constant force, but for variable force you will have to make use of integration, and in simple format you can say work is equal to the integration of force vector with respect to displacement vector. Understand? So these are the two ways in which you will be defining work done, and that was the reason that we talked about dot product in this particular lecture. And for variable force it will be using integration sign. So let us now discuss this particular concept in detail. After that we will be talking about this concept in detail. So let us now discuss work due to constant force, and let us see what is the meaning of this F and S. Now let us talk about work by constant force. As we said, this is the dot product of force vector and S vector. It is very much necessary to define what is the meaning of this S vectors. Let us suppose there is a point where force is being applied, or maybe there is a body on which you have applied force F and it is undergoing a displacement S. Sometimes you happen to say that this S is basically the displacement of the entire body, but you should be careful that there may be situations in which the point where force has been applied, that point is undergoing displacement, but the entire body is at rest. The center of the entire body is not moving. For example, when you open a tap, अगर आप एक टैप को ओपन करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो पॉइंट्स हैं जहां पे आपकी फिंगर्स टच कर रही हैं वो पॉइंट्स तो मूव कर जाती हैं, बट ओवरऑल अगर आप टैप की मूवमेंट देखें तो क्या टैप अपनी जगह से इधर उधर मूव कर जाता है? ऑफ कोर्स नॉट. टैप अपनी जगह पे है, उसकी जो टिप है वो रोटेट कर रही है. सो अगर आपने S एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंटायर बॉडी लिख दी तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो रॉन्ग हो सकता है. Therefore, to be very careful or to be on the safer side, I must say that S vector is displacement of the point. This is displacement of the point where force F has been applied. अगर आप S वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे देन हमारी रिप्रेजेंटेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी. यहां पे W क्या मीन करता है? W इज वर्क ड्यू टू फोर्स F. यहां पे W जो है दिस इज इंडिकेटिंग वर्क ड्यू टू
फोर्स F, और इसकी यूनिट आपने पहले भी देख रखी है, आप जूल लिखते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप इसको कैपिटल J से इंडिकेट करते हैं. सो दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक क्लियर, दैट ऐसा ना आप समझें कि S जो है वो पूरी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है. रादर टू बी ऑन सेफर साइड, S इज ऑलवेज डिफाइंड एज दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट वेयर द फोर्स हैज बीन अप्लाइड. Now, it is very much necessary to understand that whatever terms we use in our physics, that is a physical quantity, and उसी तरह के terms हम अपनी day to day life में भी use करते हैं. For example, ये work ऐसा word है जो हम physics में भी use कर रहे हैं और day to day life में भी work हम use करते हैं. But both of them have different meanings. They can have different meanings. यहाँ पे work स्ट्रिक्टली आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखनी है. रियल लाइफ में हो सकता है आपने कोई एक्टिविटी की, फॉर एग्जांपल ब्रीफ केस है, उसको होल्ड किया, मूव किया. इन रियल लाइफ वी से दैट वी हैव परफॉर्म वर्क, एसेंशियली दैट इज अ बायोलॉजिकल वर्क वी हैव परफॉर्म. बट यहां पे जो हम वर्क मीन करते हैं, दिस इज द वर्क एज पर फिजिक्स, जो कि हमारे इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन को ही फॉलो करेगा. दैट मीन्स on the basis of that, we can define as positive work, negative work or zero work. We can define example of, I am saying zero work. Example of zero work is that अज्यूम दैट कोई पर्सन है, एक ब्रीफ केस को होल्ड करने के लिए उसे फोर्स जो लगानी पड़ी होगी वो इस डायरेक्शन में लगानी पड़ी होगी, एंड इसको होल्ड करके वो एक हॉरिजॉन्टल रोड पे अपनी मूवमेंट कर रहे हैं. अ पर्सन इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड बाय होल्डिंग दिस ब्रीफ केस. तो ब्रीफ केस पे फोर्स वो F ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है, एंड उस पूरे ब्रीफकेस की डिस्प्लेसमेंट अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, देन यू कैन से दैट द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट हैज बिकम 90 डिग्री, एंड देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू Fs cos 90 डिग्री. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो वर्क. सो यू सी दैट इन रियल लाइफ अगर आप इस तरह का कोई वर्क करते हैं तो नेचुरली हमारी बायोलॉजिकल एनर्जी उसमें कंज्यूम होती है. वी से दैट वी हैव परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क, बट एज पर फिजिक्स द वर्क परफॉर्म इज जीरो. सो यू डू नॉट गेट मिसगाइडेड बाय द नोटेशन दैट जीरो वर्क व्हाट इज डिफाइंड इन फिजिक्स इज सेम एज द वर्क वी परफॉर्म इन अवर डे टू डे लाइफ. दैट इज डिफरेंट, दैट इज बायोलॉजिकल वर्क. और जो यहां पे हम बातें कर रहे हैं दैट इज ऑफ फिजिक्स. ऑन द सिमिलर लाइन हम नेगेटिव वर्क भी डिफाइन कर सकते हैं. नेगेटिव वर्क, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी को आपने एक रफ ग्राउंड पे थ्रो कर दिया, तो बॉडी लेट अस सपोज राइट डायरेक्शन में चली जा रही है. इट इज गेटिंग रब्ड ओवर द रफ सरफेस, एंड रफ सरफेस जो है वो उस पर एक फ्रिक्शन लगा रहा है. लेट अस सपोज फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. इन दिस केस यू सी दैट द एंगल बिटवीन दीज टू, दिस थीटा इज मोर देन 90 डिग्री और थीटा इज 180 डिग्री. हियर यू सी दिस थीटा 180 है. फॉर दैट मैटर जो यहां पे वर्क होगा फ्रिक्शनल फोर्स का वो Fs cos 180 होगा, और cos 180 डिग्री -1 के इक्वल होती है. देयरफॉर यू कैन सी दिस विल बी नेगेटिव ऑफ F इंटू एस. तो जो चीज हम यहां पे हाईलाइट करना चाह रहे थे कि वर्क एज पर फिजिक्स कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल. बट इन सारे ही केसेस में अगर आप देखें तो फिजिकल वर्क हमारा एज पर बायोलॉजी वो हमारी पॉजिटिव ही रहती है.
and we should never get confused between the actual life work and the work as per defined by the physics. You understand? Now let us have the demonstration of this particular formula, that F dot S, which you say that Fs cos theta. Sometimes we see that when in a particular question there are number of forces involved in moving a body, and the question demands that you have to calculate the work due to separate forces, then how do you go about it? How do you calculate the work due to individual forces? Some may be performing positive work, some may be performing negative work. So let us have a demonstration of calculating work in a particular situation in which a number of forces are acting. Now let us have a numerical example. Consider that you have an inclined plane of inclination theta. Consider that it is a rough surface. And over this rough surface, a body has been displaced parallel to this through a distance, you can say S. एक बॉडी को आप नीचे से ऊपर तक लेके आते हैं. Body has been moved with constant velocity. This thing has been given to you, that जिस बॉडी को आप, जिस मास को, लेट अस सपोज द मास इज m, जिस बॉडी को आप इस रफ सरफेस पे मूव कर रहे हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव की जा रही है. दिस हैज बीन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेइंग दैट कांस्टेंट वेलोसिटी मूवमेंट? इट मींस इस पे जितने भी सारे फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी वो किसी एक मोमेंट पे एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस कर रही होंगी. हमेशा ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती हुई धीरे धीरे ऊपर आ रही है. लेट अस सपोज द टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज टेकिंग प्लेस, जिस डिस्टेंस के थ्रू आपने इस बॉडी को ऊपर मूव किया है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस s दिया हुआ है. नाउ यू कैन सी ऑन दिस बॉडी सेवरल फोर्सेज मस्ट हैव बीन एक्टिंग. इस पे ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होगी, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, इस पे एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रहा है. यू अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड वर्क ड्यू टू, find work due to gravity, find work due to friction, find work due to external force जो आपने लगाया है इसकी मूवमेंट के लिए. If you feel like you can calculate the work due to normal force. Normal force, you remember, it is a perpendicular force, perpendicular to the surface, applied by the surface. Let us suppose हमने इस तरह से 4 forces की वजह से, because these forces are acting on the body when it is moving, तो चारों forces की वजह से अलग अलग वर्क कैलकुलेट करने का हमें वर्क दिया गया. Now let us see how do we go about it. Then my suggestion is that जब भी किसी फोर्स का आपको वर्क निकालना है तो आप सिंपली क्वेश्चन में उस फोर्स को दिखाएं एंड बाकी फोर्सेस के बारे में बिल्कुल वरी ना करें. यू जस्ट शो ओनली दैट फोर्स फॉर वर्क यू आर सपोज टू कैलकुलेट, एंड देन यू शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड उनके बीच की टोटल एंगल.
उनके बीच की जो टोटल एंगल होगी दैट विल बी द एंगल फॉर योर यूज. फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी की बात करते हैं. लेट अस सपोज हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं. देन एज आई सेड you have to use f dot s is equal to fs cos theta or cos phi. For the sake of simplicity, now we are taking the angle phi between f and s because हमारे क्वेश्चन में एंगल थीटा दिया हुआ है. बट हियर बाय phi we will be able to differentiate between theta and the angle we are taking between force and displacement. So if you are using this formula, I suggested दैट जिस फोर्स का भी वर्क कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी आप सोचिए दैट इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने इधर दिखाया है एस वेक्टर. दिस हैज बीन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ दैट बॉडी यहां से यहां जा रही है एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट द वर्क बाय ग्रेविटी. अभी आप ग्रेविटी या इसको आप कह सकते हैं वेट, work due to weight you are supposed to calculate. Then in this particular question आपको फोर्स की जगह पे वेट दिखाना होगा. Now you know that weight will be acting in downward direction. जो बॉडी की वेट है वो कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी? बॉडी की वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? द वैल्यू ऑफ वेट विल बी इक्वल टू mg. Understand? Now I said that you just concentrate on this force, the displacement of the body and the total angle between these two vectors. Now you see total angle between this f and s, that is being indicated as phi. Phi की वैल्यू यहां क्या होगी? यहां पे phi की वैल्यू if you see carefully, this much angle is 90 degree and on top of that this angle theta has been mentioned. You see here, theta is the angle of inclination of this inclined plane that is given and उसके नीचे ये right angle है 90 degree. So phi is essentially 90 degree plus theta. And this total angle will be of use when you will be using this formula. You understand? जब आप उस पूरे formula में apply करेंगे, then work will be fs cos phi to be written as f की जगह पे हम लिख देंगे mg, ये डिस्प्लेसमेंट s सेम एज यू हैव शोन हियर s, उसकी मैग्नीट्यूड लिखी जाएगी. यू रिमेंबर दैट हमने जब डॉट प्रोडक्ट समझाया था उस समय हमने ये कहा कि ये दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है ये f एंड s. And phi is the angle between the force and displacement vector, which you have shown as 90 degree plus theta in this particular case. So here it will be written as cos 90 degree plus theta. Now if you remember cos 90 degree plus theta, that happens to be minus sin theta. You remember that cos 90 plus theta की वैल्यू क्या होती है? Cos 90 plus theta की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है. सो हियर इफ यू विल सब्स्टिट्यूट, दिस विल बी टोटल थिंग विल बी रिटन एज माइनस mg s साइन थीटा. ये साइन थीटा की नेगेटिव साइन को मैंने आगे लिख लिया. एंड ओवरऑल इफ यू सी, देन वर्क ड्यू टू दिस वेट mg की वजह से जो वर्क आप निकाल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली निगेटिव में आ रही है, माइनस mg s साइन थीटा. यू डोंट हैव टू वरी that whether it will be coming out as positive or negative. ये खुद से खुद हमारा जो notations है that will show that it is a negative vector. That means the work performed by weight in doing this operation is negative. You understand? Now if you talk about the work due to friction, अब जैसे next portion हमारे question का demanded है that what is the work due to friction, then again the same procedure will be there, that you have to show the force of friction, you have to show the displacement and cos of the angle between them. So let us do that.
If you consider the second part, work due to friction, then you see in the displacement of the body की displacement S है, displacement of the body S is denoted as it is. ये ऊपर की ओर गई है बॉडी, एंड since you have to calculate the work due to friction, then you see the frictional force will be acting in this direction, opposite direction में ये frictional force act कर रही होगी. Why? Because as per the knowledge of friction, you know that जब बॉडी की यहां रबिंग हो रही है तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. और बॉडी को अगर आप उधर रबिंग कर रहे हैं तो सरफेस की जो फ्रिक्शन है वो बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी. इन केस यू फील लाइक यू कैन राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एज म्यू एम जी कॉस थीटा. ये आपने पहले डिस्कस किया है कि अगर बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन थीटा पे अगर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन इज एसेंशियली म्यू इंटू एन, एंड एन की जगह पे आप एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं. नॉर्मल फोर्स इस बॉडी पे एम जी कॉस थीटा होगी, एंड ओवरऑल फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा लिखी जाएगी. बट फॉर द सेक ऑफ calculation of work, the angle phi which you have denoted, that angle phi will be equal to 180 degree here. Tell me, is this clear or not? बॉडी राइट जा रही है या अपवर्ड जा रही है और फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या हुई? इनके बीच में एंगल 180 डिग्री हुई. राइट नाउ अगर हमें वर्क कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करना है, देन द फॉर्मूला इज डिमांडिंग दैट वर्क इज एफ एस कॉस फाई, एंड फॉर एफ हियर यू विल बी यूजिंग दिस फ्रिक्शनल फोर्स. राइट, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है आपने उसी का वर्क कैलकुलेट करना है, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन. सो नेचुरली इस फॉर्मूला में कैपिटल एफ क्या होगा? वही फोर्स होगा जिसका वर्क कैलकुलेट होना है, दैट इज हियर फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमें दी गई है म्यू एम जी कॉस थीटा. ये पूरे फोर्स की वैल्यू हो गई म्यू एम जी कॉस थीटा. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन दिस डिस्प्लेसमेंट एस. तो यहां डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू लिखी गई जो इस बॉडी की है, एंड देन कॉस ऑफ द एंगल, एफ और एस के बीच की जो एंगल है टोटल 180 डिग्री, उसकी कॉस, दैट इज कॉस 180 डिग्री. कॉस 180 की वैल्यू एज यू नो दिस इज -1. राइट, सो इफ यू राइट डाउन द इंटायर थिंग, दिस इज माइनस म्यू एम जी एस कॉस थीटा, बिकॉज यू सेड कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1. सो अगेन यू सी दी वर्क परफॉर्म बाय फ्रिक्शन इज कमिंग आउट टू बी अ नेगेटिव वैल्यू. आप देख रहे हैं कि हम जब ये प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं कि हमने सिर्फ उस फोर्स को दिखाना है जिसका वर्क चाहिए, डिस्प्लेसमेंट दिखाना है और उसके बीच की पूरी एंगल दिखानी है, देन ऑटोमेटिकली वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव में आएगा. यू डोंट हैव टू वरी वेदर इट विल बी कमिंग आउट पॉजिटिव और नेगेटिव. यू अंडरस्टैंड? फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको वो वैल्यू देता है, बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द एंगल विच यू हैपन टू टेक बिटवीन द टू वेक्टर्स. जिस फोर्स की आपको वर्क निकालनी है उस फोर्स और जो पूरी डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की बीच के एंगल, टोटल एंगल जो है दैट इज बीइंग इंडिकेटेड एज फाई. राइट नाउ गेटिंग डाउन टू द थर्ड पार्ट, इट इज डिमांडिंग दैट व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. नाउ इन दिस क्वेश्चन एक्सटर्नल फोर्स हैज नॉट बीन गिवन.
आपको एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी गई है, एंड पहले आपको उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. लेट अस डू दैट. In the third part, first calculate F external. F external means what? This external force which you have said. You understand? External force की value F external you have to calculate. Now see, how will you calculate this? Say F external is acting parallel. F external is acting parallel to the motion of the body. हमने यहां शो किया है that you applied an external force in this direction, जो कि इस बॉडी को ऊपर लेके जा रही होगी. Now to oppose the motion of this body, there are two forces acting on it. एक तो इस बॉडी की mg sin थीटा, एक बॉडी की mg sin थीटा नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. mg sin थीटा इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और एक दूसरा आपने कहा था अभी कि इस बॉडी पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपने अभी अभी कहा था कि इट वाज म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा. नाउ is this clear to you that when you are taking this body upwards, तो आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है एंड इस बॉडी की मोशन को अपोज करने के लिए बॉडी का एक वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. एंड सिंस दिस बॉडी इज मूविंग ऑन अ रफ सरफेस, तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और उसके फॉरवर्ड मोशन को वो इंपीड करने का ट्राई करेगा, अपोज करने का ट्राई करेगा. प्लस यू सी इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन दैट द बॉडी हैज बीन मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी. नाउ यू सी, ये जो सेंटेंस हमें लिख के दिया गया, दिस विल प्ले इट्स रोल. इसमें ये मतलब हुआ था कि बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, दैट मीन्स एवरी मोमेंट इस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा. Constant velocity implies constant velocity movement. Constant velocity movement implies that net force on the body is zero. बॉडी पे जो भी नेट फोर्स लग रही है वो जीरो है. सो यू कैन सी एफ एक्सटर्नल ऊपर लग रहा है. लेट्स सपोज हमने उसको प्लस एफ एक्सटर्नल लिख दिया. एंड सिंस दीज टू फोर्सेज आर एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों फोर्सेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही हैं, सो हमने इसको माइनस mg साइन थीटा एंड माइनस एफ लिख दिया. एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. अंडरस्टैंड? जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एसेंशियली इन दोनों फोर्सेस की सम होगी. एंड यू कैन से एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली. एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई mg साइन थीटा प्लस एफ की वैल्यू चाहें तो आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. दिस विल बी प्लस म्यू mg cos थीटा. तो पहले आपने ये अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट की दैट इन दिस मूवमेंट द एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा. दिस इज द टोटल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी when it is being taken in upward direction. Now when you have to calculate the work done, then simply the old formula. You understand what was the old formula?
Now we will use work done is equal to F external dot S vector, that is F external into S into cos phi, right? एंड इस इंक्लाइन प्लेन पे आप अगर आप देखें तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो आपने यहां पे एफ एक्सटर्नल शो कर दिया, दिस इज एफ एक्सटर्नल। एंड बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहां पे अगर एस वेक्टर को शो करेंगे तो इनके बीच की एंगल अब क्या हो गई, इन दोनों वेक्टर के बीच की एंगल अब 0 डिग्री हो गई। यू अंडरस्टैंड, एफ एक्सटर्नल उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन एक्ट कर रहा है, तो एफ एक्सटर्नल एंड एस वेक्टर के बीच की एंगल जो हो गई वो 0 डिग्री हो गई। देयरफॉर हियर इट इज एफ एक्सटर्नल इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, and cos 0 as you know this is equal to 1, cos 0 कितनी वैल्यू होती है 1, so what you have to do, you have to substitute the value of f external which you had calculated here, this is mg sin theta plus mu mg cos theta into s, the displacement. Cos 0 anyway it is 1, so work due to external force की फाइनल वैल्यू ये कैलकुलेट होके आ जाएगी। दिस इज द वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। सी दिस एक्सटर्नल फोर्स की वर्क जो है वो ऐसे कैलकुलेट होगी। अंडरस्टैंड? नाउ द फाइनल फैक्टर डिमांडेड दैट व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, सो लेट अस डू दैट। The fourth part of the question is demanding is that work by normal force, right? Work by normal force. Again you consider the situation, what is happening? This was angle theta, the body was undergoing a displacement in a direction parallel to the inclined plane, this is S vector, and the normal force which was acting on the body, it was this normal force. If you recapitulate, हमने कहा था कि जो सरफेस अपने परपेंडिकुलर, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, सरफेस अपने परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्सर्ट करती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। इसकी यहां क्या वैल्यू है ये कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, बिकॉज if you see the angle between the force and the displacement vector, that is coming out to be 90 degree, right? Normal का मतलब ही है perpendicular to the surface, वो आपने इस डायरेक्शन में शो किया है, एंड बॉडी की डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन हो रही है, देन इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगी, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगी, एज इट हैज बीन शोन इन द डायग्राम। सो in case you are supposed to calculate work due to normal force, then we are using work is equal to F dot S, that is Fs cos phi. Then here force की जगह हम लिखेंगे normal force N, displacement S की जगह हम लिख देंगे S, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, ns cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, सो वर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स कम्स आउट टू बी 0। ये इसकी फाइनल कैलकुलेशन हो गई। अंडरस्टैंड? सो व्हाट आई ट्राई टू हाईलाइट दैट वर्क ड्यू टू एनी फोर्स इफ इट इज डिमांडेड इन ए क्वेश्चन, देन सिंपली व्हाट यू आर सपोज टू डू इज दैट यू शो द फोर्स, show the displacement vector and the total angle between them, just a cos of that,
will give you the work done. Force, displacement and the cos of the angle. When you are showing the force due to which you are supposed to calculate the work, you can see I am not showing other forces at all. बिल्कुल क्लीन वर्क आपने रखा है कि जो भी फोर्स की वर्क निकालनी है सिर्फ वो ही फोर्स दिखाई जाए, बाकी सारे फोर्सेस के बारे में यू नीड नॉट वरी. फिर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट दिखाई जाए एंड फोर्स कंसर्न और डिस्प्लेसमेंट के बीच की टोटल एंगल को हमने फाई से इंडिकेट करना है. देन एफ एस कॉस फाई, दैट विल गिव यू दी वर्क डन. यू अंडरस्टैंड? नाउ आफ्टर डीलिंग विद दिस force due to work due to constant force, let us discuss now work due to variable force.